الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گرامی قدر حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، دیگر معزز برادران اسلام اور پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جن کا شمار، جن کی گنتی اور جس کا شکر ادا کرنا کسی انسان کے بس، قدرت اور طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے خود ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کو الفاظ کے پیرائے میں ادا کرنے اور اس کے مقابلے میں ہماری تقصیرات پر معذرت بھی ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے شکر نعمت ہائے تو، چندہ کی نعمت ہائے تو، شکر نعمت ہائے تو، چندہ کی نعمت ہائے تو، عذر تقصیرات ماں، چندہ کے تقصیرات ماں۔ فارسی کا شعر ہے، ہمارے طلباء علماء اکثر جانتے ہیں، لیکن اب فارسی بھی مرحومہ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے
اس کے جاننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ اللہ تیری نعمتیں جتنی ہیں اتنی ہی ہم اپنی زبان سے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لفظی شکر فقط، حقیقی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے گناہ، تقصیرات، کوتاہیاں اتنی ہیں کہ ہم معافی تو حقیقت میں مانگ نہیں سکتے ہیں، لیکن جتنے الفاظ معافی کے ہو سکتے ہیں اتنے الفاظ اللہ تیرے دربار میں معافی کے پیش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حدیث کے سلسلے کے مشائخ میں سے، انہوں نے اصول تفسیر میں کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اس کے شروع میں ہی انہوں نے یہ بحث ذکر کی ہے، اعلم ان علوم القرآنیہ، اعلم ان علوم القرآن خمسۃ، اے طالب علم جان تو کہ قرآن پاک کی آیات میں جو اللہ نے علوم رکھے ہیں وہ 5، ان 5 قسموں میں سے ایک علم 6666 آیتیں ہیں، ان کو 5 حصوں میں تقسیم کرو تو ایک حصہ قرآن کی آیات کا ایسا ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ آیات تذکیر بآلاء اللہ کے قبیل سے ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات، اپنے احسانات کا تذکرہ کر کے انسان کو توجہ دلائی کہ ان نعمتوں پر غور فکر کر اور میری قدرت، میری وحدانیت، میری توحید اور میری معبودیت کو اور الوہیت کو تسلیم کر۔ بہرحال بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، پھر وہ نعمتیں اس کے تو ہزاروں جزیات ہیں، لیکن 2 بڑی بڑی قسمیں اس کی جا سکتی ہیں، آفاقی نعمتیں اور انفسی نعمتیں۔ آفاقی کا مطلب وہ نعمتیں جو انسان کی ذات سے باہر کی ہے لیکن ہیں انسان ہی کے لیے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، اسی طرح جانور، کشتیاں، نباتات، جمادات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا۔ پھر اپنی ذات میں بھی اللہ نے انسان کی کتنی نعمتیں، ایک سانس آدمی لیتا ہے اور پھر وہ دوسرا سانس چھوڑتا ہے تو ہر ایک سانس اللہ کی 2 نعمتوں پر مشتمل ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک سیکنڈ میں آدمی کتنے سانس لیتا ہے، 1 منٹ میں کتنے، 1 گھنٹے میں کتنے، 24 گھنٹے میں کتنے، 1 ماہ میں کتنے، 1 سال میں کتنے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی میں فقط سانس کی نعمت کو بھی انسان شمار کرنا چاہے اور بڑا سے بڑا کمپیوٹر پہ شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن، ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن، تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، ہما از بہر تو سرگشتئی و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان بری۔ یعنی ابر، آسمان، چاند، سورج، فلک، یہ ساری چیزیں اے انسان اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنائی، درکارن یہ سب اپنے کام میں مشغول ہے، چاند، سورج، زمین، دریا، پانی، یہ سب انسان کی غذاؤں کے اگانے اور پیدا کرنے میں معین و مددگار ہے۔ تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، زمین میں چند دانے کسان ڈالتا ہے، اس کے پیچھے چاند، سورج کی کرنیں کار فرما ہوتی ہے، بادل برستا ہے، زمین اگاتی ہے، جانور اس کو تیار کرتے ہیں، پتھروں سے، چکیوں سے پیسا جاتا ہے، پھر آگ کے ذریعے روٹی پکائی جاتی ہے، کھانا بنایا جاتا ہے۔ ایک لقمے کے خاطر کتنی بڑی بڑی مخلوق انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تاکہ نانے بکفاری، تاکہ روٹی کا ایک ٹکڑا تو حاصل کرے اور کھائے تو بغفلت نہ خوری، غفلت سے نہ کھائے، اللہ کو یاد کرے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو اس کے پیچھے میرے خاطر لگا دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، ہما زبیر تو
सरगश्तई व फरमा बरदार, शर्त इंसाफ न बाशद के तू फरमान बरी। ये सारी मखलूक का इंसान तेरी खिदमत में लगी हुई है, लेकिन बड़ी बेइंसाफी की बात है कि तू अपने खालिक और मालिक से गाफिल बना बैठा है। सारी मखलूक तेरी खिदमत में, तू अल्लाह के लिए था और तू अल्लाह को भुला बैठा है। अर्ज करने का मंशा है कि बेशुमार नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। उन्हीं नेमतों में से एक अजीम नेमत व औलाद की नेमत। जिन लोगों की गोद औलाद से खाली होती है या जिन घरों के अंदर औलाद नहीं होती है, औलाद की तमन्ना, उसके आरजू, उसकी कुड़न का अंदाजा वही लगा सकते हैं। और औलाद ना होने पर औलाद की तमन्ना करना, आरजू करना, उसके लिए इलाज मुआलजा करना, तदबीर करना, ये एक इंसानी फितरत है। आम इंसान तो आम इंसान, हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों पर हमा वक्त राजी रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने भी औलाद के हुसूल के लिए अल्लाह ताला के दरबार में अपना हाथ उठाया। कुरान पाक में दो वाक़े तफसील से जिक्र किए गए, फ़कत इशारा कर देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे कोई औलाद नहीं थी। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तफसीरी रिवायात के एतबार से बाज़ में है कि 120 साल हो गई थी और हज़रत सारा की उम्र 100 या 99 के करीब हो गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस हालत में अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह तो मुझे कोई फर्जन, कोई औलाद अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद बतौर तोहफे के अता किया और बुढ़ापे के आलम में अता किया, जबकि असबाब कोई मौजूद नहीं थे। ये बतलाया गया कि अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की ज़ात पर ऐसा यकीन था कि अल्लाह ताला असबाब के मोहताज नहीं, बगैर असबाब के भी औलाद अल्लाह अता करे तो कर सकता है। चुनांचे अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाया। दूसरा वाक़या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का है, सूरह मरियम में भी और दूसरी जगह भी। काफा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। अपने मेरे बंदे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की रहमत जो उनके रब की तरफ से उन पर हुई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका तज़किरा उम्मत के सामने की। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जबकि उन्होंने अपने रब को आहिस्ता से और खुफिया तरीके से पुकारा, दुआ की। इससे मालूम हुआ कि दुआ में असल खुफिया और सिर यानी आहिस्ता से दुआ मांगना अफजल है। जहरन दुआ भी की जा सकती है, लेकिन अफजल ये है कि दुआ आहिस्ता से की जाए। इसमें भी बाज़ दफ़ा बड़ी ताद्दी और गुलू से काम लिया जाता है। बहुत से मसाजिद में जाना होता है तो बेचारे बड़ी मोहब्बत से हमसे कहते हैं कि भाई खुतबा नमाज भी आप पढ़ा दें। तो बाद आप दरख्वास्त करते हैं कि वो रमज़ान में जैसी दुआ होती है जुमा में भी ऐसी करें। तो मौके महल को देखना चाहिए। जुमा में ऐसा मजमा आता है जो अपने काम धंधे ज़रूरत को छोड़ करके आता है, इसलिए कोई कितना भी इसरार करे लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं। ये मौलवियों को मैं कह रहा हूँ, बहुत लंबी लंबी दुआएं करने की ज़रूरत नहीं, मुख्तसर दुआ कर ले और सिर्रन कर ले, बस इतना काफ़ी है। किसी को बहुत शौक है तो उनको कहो तहज्जुद के वक़्त में लंबी दुआ कराऊंगा। 12 रमज़ान में तो लोग जुड़ते ही हैं इसलिए फारिग होकर के आज हमें दुआ में शरीक होना है, इसलिए उस वक्त उसकी गुंजाइश है। असल दुआ क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। अब आहिस्ता दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों की? एक तो यही कि अल्लाह ताला हर चीज़ को देखने वाला, सुनने वाला है। बुलंद आवाज से पुकारे तो भी अल्लाह सुनने वाला है, आहिस्ता से अल्लाह को पुकारे, दिल में ही याद करे, दिल में ही दुआ करे तो भी अल्लाह सुनने वाला है। दूसरी एक वजह भी कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम भी आखिर इंसान है और लोग किसी को छोड़ते नहीं है मलामत करने और तान तशनी करने पर। नबी हो या वली, आलिम हो या मुफ्ती, बुजुर्ग हो या कोई भी, एतराज करने वालों
की ज़बान हमेशा खुली रहती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बिल्कुल उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गए, बीवी भी बांझ है, वो भी बूढ़ी हो गई। अब ऐसी हालत में बुलंद आवाज से अगर दुआ करते तो लोग कहते बड़े मियाँ को बुढ़ापे में औलाद का शौक हुआ है, इसलिए आहिस्ता से दुआ मांगी। अलबत्ता अल्लाह के सामने अपना ज़ौफ, अपनी कमजोरी, अपना इज्ज़ जाहिर किया। रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। ए मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरी हड्डियां सारी कमजोर हो गई, यानी जवानी की जो कुव्वत होती है वो कुछ भी बाकी नहीं रही, और सफेदी मेरे पूरे सर के अंदर फैल गई, एक बाल भी काला नहीं रहा। बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं है औलाद की। वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया, लेकिन अल्लाह तेरी जात पर यकीन है कि जब जब मांगा कभी महरूम नहीं रहा तुझसे। आज भी उम्मीद है कि असबाब के न होते हुए तू मुझे महरूम नहीं करेगा। इस यकीन के साथ अपनी इज्जत का भी इजहार, अपने ज़ौफ़ का भी इजहार, लेकिन यकीन कामिल, पूरा यकीन कि अल्लाह इस हालत में भी अता करेगा, और दुआ मांगी। फिर लंबा वाक़या है, अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दी, नाम भी तजवीज़ किया कि ऐसे लड़के की बशारत देते जिसका नाम यहया होगा। ये दो वाक़े अर्ज करने का मंशा मेरा ये है कि औलाद न हो तो औलाद की तमन्ना, आरज़ू, उसकी दुआ, उसकी तदबीर ये करना, ये कोई इंसान की नबूवत और उसकी विलायत और उसके ऊंचे मकाम के खिलाफ नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम के यहाँ भी औलाद नहीं हुई तो उन्होंने भी अल्लाह से मांगा, दुआ की, तदबीर की। अल्लाह ताला ने दोनों पैगम्बरों को औलाद अता की। जहाँ ये नेमत है अल्लाह ताला की औलाद, वहीं पर इन औलाद के बहुत सारे हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं। जैसे औलाद के ऊपर माँ बाप के हुकूक है, माँ बाप के ऊपर भी औलाद के हुकूक है। औलाद के हुकूक जो माँ बाप पर है, उनमें सबसे पहला हक तो ये है कि वे अल्लाह तबारक व तआला किसी के यहाँ उम्मीद की किरणें जाहिर फरमाए तो उसी वक्त से नियत कर ले कि मैं इस बच्चे को जीने का हक दूंगा, इसके वजूद का हक दूंगा। आप सोचेंगे कौन ऐसा है भाई जो अपने बच्चे को जीने का हक नहीं देता है। हकीकत यह है कि ज़माने जाहिलियत के अंदर ऐसे नजरियात भी थे कि अपनी औलाद को जीने का हक नहीं देते थे, और ये ज़माने जाहिलियत उखरा आया है। मुहज़्ज़ब ज़माना जाहिलियत तो है, लेकिन मुहज़्ज़ब जाहिलियत का दौर है, इसमें भी बहुत से लोग औलाद को जीने का हक नहीं देते हैं। उस ज़माने में तो कोई ऐसी सोनोग्राफी और कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं थी जिससे तशख़ीस हो कि लड़का है या लड़की है। तो लड़की पैदा होती थी तो जैसे ही लड़की पैदा होती थी तो बाप माँ भी उसमें शरीक होती थी, और गढ़ा तैयारी होता था, जहां लड़की पैदा हुई उसको ऐसे घड़े के अंदर ढकेल देते थे। पहला हक तो क्या है? औलाद को जीने का हक दो। आज भी बहुत सारे घराने गैर मुस्लिमीन में है, मुसलमानों में भी है, जो दीनदार है वो भी, कि वो कसरत औलाद के कायल नहीं है, और अगर 2-3 औलाद ज्यादा हो गई और फिर से इस्तकरार होता है तो कोशिश करते हैं कि हमल का इस्कात हो जाए, फिर वो 4 महीने का हो या 8 महीने का हो, लोग उसकी परवाह नहीं करते। ये औलाद को 4 महीने के बाद इस्कात कराना ऐसा ही है जैसे जिंदा इंसान को कत्ल करना, वही उसका हुक्म है। पहला हक ये है, जमाने जाहिलियत में 3 वजूहात से अपने औलाद को लोग कत्ल करते थे, न जीने से महरूम कर देते। बाज लोग तो लड़कियों को ही नापसंद करते थे, लड़की होना उनके यहाँ आर था। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब किसी को खबर दी जाती है कि तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हो गई, जल्ल वजहू मुस्वद्दा, उसका चेहरा काला पड़ जाता था। बाज लोग ये सोचते थे कि लड़की पैदा होगी तो खास तौर पर लड़कियों के लिए तस्वुर होता था कि इनको खिलाएगा पिलाएगा कौन, फाका होगा, फक्र होगा। इस डर से अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़, औलाद को कत्ल मत करो फक्र के डर से। नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें, अभी तो वो आए नहीं दुनिया में, उससे पहले अल्लाह क्या फरमा रहे, हम उसको रोजी देने वाले और तुमको भी रोजी देने वाले, रोजी हमारे जिम्मे। और एक नजरिया था कि बाज लोग अपने बुतों के ऊपर अपने बच्चों को ज़बा कर देते थे, नजर मांगते थे, मन्नत मांगते थे। जैसे हमारे यहाँ बुतों के नाम पर जानवरों को ज़बा करते हैं बाज मुसलमान,
बुजुर्गों की मज़ारों और कब्रों पर भी जानवरों को ज़बह करते, औलाद को भी ज़बह करने का रिवाज था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा है और उन्होंने एक रिवायत बयान की कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा, एक देहाती शख्स, और कहने लगे, या इब्न ज़बीहतैन, ए दो ज़बी के लड़के, हलकतिल अम्वाल, माल हलाक हो गए, जमीनें खुश्क हो गई, नहरों का पानी पस्ती में चला गया, अहल व अयाल ज़ाय हो गए, तो इब्न ज़बीहतैन, अल्लाह ने जो आपको माले गनीमत और माले फई दिया है उसमें से हमें कुछ अता फरमाइए। ये उन्होंने दरखास्त की। उस पर हजरत मुआविया से मजलिस के हाजिरीन में से किसी ने पूछा कि उस आराबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्न ज़बीहतैन क्यों कहा, दो ज़बी के लड़के। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, मशहूर वाक़या है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह के लिए पेश किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन छुरी चली नहीं, क्योंकि ख्वाब में क्या देखा था, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, ए मेरे बेटे मैं तुम्हें देख रहा हूं ख्वाब में ज़बह करते हुए। ज़बह कर दिया, गला कट गया, ऐसा नहीं देखा था। अल्लाह ताला इम्तिहान लेना चाहता था, इम्तिहान में कामयाबी हुई, ज़बह कर रहे हैं, छुरी को हुक्म नहीं है चलने का, बस ख्वाब पूरा हो गया। कसद्दक़्त रुया, आपने ख्वाब सच कर दिखलाया, ख्वाब में इतना ही देखा था, ज़बह कर रहा हूं बस, और उसमें कामयाब हो गए। तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल जो ज़बी है, ज़बीउल्लाह कहते हैं ना, उनके औलाद में से है। तो एक आपके बाप दादा जो है वो ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे कौन से, हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने नजर और मन्नत मानी थी अल्लाह के लिए, बुत के लिए नहीं, कि जमजम का कुआं जो गुम हो गया था अगर दस्तयाब हो जाए तो मेरे 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह के लिए ज़बह करूंगा। अब वो जमजम का कुआं मिल गया, उसी की बरकत है कि आज जमजम से हम फायदा उठाते हैं। अब नजर पूरी करने का मौका आया, 10 बेटों में से किस बेटे को ज़बह किया जाए, तो कुरान अंदाज़ी की गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ख्वाजा अब्दुल्लाह का नाम निकला, सबसे छोटे बेटे, चहीते बेटे, ज़बह का इरादा किया। उससे पहले और दोबारा कुरान अंदाज़ी की, सेवारा कुरान अंदाज़ी की, उन्हीं का नाम निकलता रहा। अब इरादा हो गया कि भी इनको ज़बह कर दिया जाए, क्योंकि मन्नत मानी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल के लोग जो थे उन्होंने सिफारिश की कि अब्दुल मुत्तलिब आप अपने रब को इस तरह राजी कर लो कि इस बच्चे के बदले में फिदिया दे दो। चुनांचे 100 ऊँट उस जमाने में, 100 ऊँट ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाजा अब्दुल्ला के बदले में ज़बह किया और ख्वाजा अब्दुल्ला जिंदा रहे और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ज़बी के लड़के हुए, एक ज़बी इस्माइल, दूसरे ज़बी अब्दुल्ला, लेकिन उनको ज़बह नहीं किया गया। वाकया इसलिए मैंने बयान किया कि उस जमाने में एक नजरिया ये भी था कि लोग अल्लाह के नाम पर भी बच्चों को ज़बह कर देते थे और बुतों के नाम पर भी। इस्लाम ने आकर के मना कर दिया कि औलाद का कत्ल जायज़ नहीं। बनु तमीम के सरदार कैस इब्न आसिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मैंने अपने हाथों से अपनी 8 बेटियों को गड़े में जिंदा उतारा है, 8 बेटियों। उस जमाने में कुछ अच्छे लोग भी थे, चनांचे फरजदक शायर, जिनका तस्करा हमारे उलमा तलबा ने किताबों में पढ़ा, अपनी दरसी किताबों में। फरजदक शायर के दादा सासा उनका नाम है। जमाने जाहिलियत में जब कभी उन्हें मालूम होता था कि भी फुला शख्स के घर में बच्ची पैदा हुई, फौरन पहुंच जाते थे और कहते थे मुझे दे दोगे बच्ची, लोग उनको दे देते थे। फिर वो बच्ची बड़ी हो जाती थी तो माँ बाप से कहते तुम उसको लेना चाहते हो, वो अगर लेते तो ठीक, वरना उसकी शादी करवा देते। इस तरह सासा जो फरजदक शायर के दादा थे, उन्होंने तकरीबन 360 लड़कियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया। अर्ज किया उन्होंने, या रसूलल्लाह, मैंने जो ये काम जमाने जाहिलियत में किया उस पर मुझे अज्र मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے تمہیں مالا مال کیا۔ عرض کرنے کا منشا یہ کہ یہ نظریہ آج بھی پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر اولاد کو قتل کرنے کا، لیکن بہت مہذب انداز میں۔ تو پہلا حق تو یہ ہے کہ بھی ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے اپنی اولاد قتل ہو، پس پردہ ہو۔ ایک حق یہ ہے۔ دوسرا حق، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ظاہری تربیت، نشو و نما، اس کا کھلانا پلانا، کپڑا، علاج، معالجہ، یہ حق بھی ماں باپ پر ضروری ہے، اور اس حق کی ادائیگی میں کوئی تفریق نہیں۔ مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، پرندہ بھی کرتا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تیسرا حق جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، جو ظاہری تربیت سے بھی زیادہ اس کا حق ہے، واجب ہے اور ضروری ہے، وہ ہے اپنے اولاد کی ایمان کی اور دین کی فکر۔ بچہ پیدا ہو وہاں سے لے کر کے اس کے جوانی تک، بلکہ اس کے بعد بھی ہر ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اور میری نسل ایمان پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، قرآن کی تعلیم ان کی زندگی میں ہو، نماز ہو، شریعت کے احکام ہو، گناہوں سے بچتے رہے۔ یہ فکر ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ان پر فرض ہے اور واجب ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں۔ قرآن پاک کے مطالعے سے اور احادیث مبارکہ اور اسلاف کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین انبیاء علیہ السلام بھی، حضرات صحابہ بھی، ہمارے اسلاف بھی اپنے اولاد کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمان کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ تعلیم دی، یہ تنبیہ کی، یہ توجہ دلائی کہ دیکھو ایک نبی کو جو فکر اپنے اولاد کے سلسلے میں، تمہیں بھی وہ فکر ہونی چاہیے۔ بڑے عجیب انداز میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس خاندان کا تعارف کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، ابو الانبیاء ہے، بلکہ ان کے لڑکے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 لڑکے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خود نبی تھے، اور پھر ان 12 لڑکوں سے 12 قبیلے چلے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کے معنی تھے عبد، اور الہ اللہ کے معنی میں، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی عبداللہ، اسی سے بنی اسرائیل چلے۔ قرآن پاک میں جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور احادیث میں، اور جن کا ذکر ہمیں معلوم نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آئے، سوائے 10 کے۔ 10 انبیاء کے علاوہ کوئی نبی بنی اسرائیل سے خارج نہیں۔ اتنا زیادہ سلسلہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا رہا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے جو انبیاء کا سلسلہ چلا، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کہلاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی پشتوں تک نبوت کا سلسلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے اولاد بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، ان کے پر پوتے بھی نبی، اور آئندہ بھی خاندانوں میں کتنے انبیاء۔ لیکن 4 پشت کے بعد اس کا ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا؟ جواب بالکل ظاہر ہے کہ اللہ، ہم کہاں اس وقت موجود تھے، ہم تو اخیر میں آئے، ہمارا وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ تم اس وقت حاضر نہیں تھے، موجود نہیں تھے، میں موجود تھا۔ میں تو ہر وقت، ہر زمانے، ہر شب و روز میں، ہر جگہ پر حاضر ہوں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا ان کی موت کے وقت، اور موت کے وقت بلا کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ اذ قال لبنیہ، جب کہ اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرے بیٹوں، میرے بچوں، میں نے بہت ساری دنیا جمع کی ہے،
2-2, 4-4 फैक्ट्रियां बनाई है। तो देखो इन फैक्ट्रियों में कमी न होनी पाए। मैंने तो ये 4 फैक्ट्रियां बनाई थी, तुम्हें 8 बनानी है। मैंने एक दुकान कायम की थी, तुम जो है 12 लड़के हो तो 12 दुकानें बन जानी चाहिए। एक मिल मैंने बनाई बड़ी मेहनत से, तुम 12 हो तो 12 मिल तो कम से कम होनी चाहिए। ये कोई तस्करा नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, पहले तू सोच के तेरा क्या होगा। बच्चों का तो जो होगा वो होगा। आमतौर पर इंसान बच्चों के लिए क्या नहीं करता है, जो नहीं करना चाहे वो भी करता है। रात दिन मेहनत करते हैं लोग, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। क्यों? बच्चे सुखी हो जा रहे, वो सुखी हो जाएंगे, तू दुखी होगा, उसका क्या करेगा। बहरहाल हजरत इब्राहिम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या पूछा? मेरी माए बहनें भी सुने, सब सुने। क्या कह रहे हैं मौत के वक्त याकूब अलैहिस्सलाम? माँ ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? देखो ये नबुवत का घराना है। कोई घर में कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फुजूर, गुनाहों का माहौल नहीं है, पाकीज़ा माहौल है। नूर नबुवत से पूरा घर जगमगा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी याकूब अलैहिस्सलाम को अपने मरने के बाद अपने औलाद की काहे की फिक्र ईमान की? मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? यकीनन जवाब वही होना चाहिए था जो उन्होंने दिया। अंबिया की औलाद, अंबिया की परवरिश, नाबुदु इलाह, अब्बा जान आपका जो खुदा है और आपके बाप दादाओं का जो खुदा है, एक ही खुदा, हम उसी की इबादत करेंगे। आप इत्मीनान रखें, नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसी की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। ये वाकया कुरान ने हम सबको झंझोड़ने के लिए पेश किया है कि तुम दुनिया के अंदर मस्त मत हो जाओ। औलाद के लिए फकत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बेहतरीन किस्म की गाड़ियां, बेहतरीन किस्म के बंगले बनाने की फिक्र इसमें मत पड़ो। उनके सिलसिले में तुम्हें फिक्र होनी चाहिए कि मेरे बेटा ईमान पर कायम है या नहीं, मेरा बेटा दीन पर कायम है या नहीं, नमाजें पढ़ रहा है या नहीं, उसकी घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी कैसी है वो हमारे सामने होनी चाहिए। एक शख्स का लड़का अमेरिका चला गया, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके आया। दोस्त अहबाब ने पूछा, साहबजादे आए हैं, क्या हाल है? बहुत तरक्की की मेरे बेटे ने, फला डिग्री हासिल की, फला डिग्री हासिल की, फला डिग्री। अलबत्ता इतना है कि थोड़ा सा बेदीन हो गया है। क्या कहते हैं? थोड़ा सा। दीन को क्या समझ रहे? थोड़ा सा बेदीन हो गया है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातहुम इस पर एक मिसाल बयान करते हैं कि ये तो ऐसा ही है जैसा कि एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तबीयत सीरियस है, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अब एक बड़े डॉक्टर अंदर से आते हैं और अजीज कोई पूछता है अजीजों में से, भाई मरीज का क्या हाल है, पेशेंट का क्या हाल है? तो वो डॉक्टर कहता है MBBS या कि MD डॉक्टर, बहुत अच्छी हालत है आपके मरीज की, थोड़ी सी जान निकल गई, थोड़ी सी। वो क्या कहेगा, तू बेवकूफ है कि डॉक्टर है कोई? जान निकल गई तो रहा क्या उसमें? तो जब जान ही नहीं है तो फिर उस बॉडी का करना क्या है? जब दीन ही नहीं तो उस बॉडी का करना क्या है? जिस बॉडी के अंदर दीन ना हो, ईमान ना हो, वो तो जीफा है, एक मुर्दार की तरह, चलती फिरती लाश है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें जरूरत है कि हम इस बात की फिक्र करें कि हमारी औलाद कहीं कुफ्र और शिर्क के दहाने पर तो नहीं जा रही। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो फितने चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ जो माहौल है बहुत गनीमत है दूसरे इलाकों के मुकाबले में। दूसरे सूबों में, एरियो में जाना होता है। अभी मैं तकरीबन 1 महीने से ही सफर में हूँ, आज भी सफर से आया हूँ। और 2-3 दिन पहले ही एक और जगह हम गए, बहुत बड़ा जिला है गोंदिया जिला, वो MP के पास, महाराष्ट्र के आखिरी बॉर्डर पर इतना बड़ा जिला है। वहाँ के गोंदिया जिले के अंदर, जिला में की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की जामे मरकज की मस्जिद में कोई आलिम और हाफिज नहीं, और पूरे गांव में आज तक आलिम हाफिज नहीं। वहाँ इमामत करते एक ऐसे शख्स जो 20 सूरतें उनको याद है। वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ 35 मकातिब उन्होंने इस वक्त कायम किया है। इस वक्त एक साहिब खैर ने मरते मरते कुछ ज़मीन वक़्फ़ की, तो वो इसी बात पर मुंतज़िर थे कि मैं पहुँचूँ वहाँ तो हम कुछ मुज़ाकरा करें और मदरसे की बुनियाद डालें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद अब वहाँ एक मदरसे की बुनियाद डाली जाएगी और मदरसे का सिलसिला कायम हो। एक बड़ा ज़िला है,
और देखिए एक हाफिज और आलिम है, आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने हुफ्फाज को सनद दी गई, कितने उलमा बैठे हैं, कितने हुफ्फाज बैठे हैं। इस पर तो इंशाअल्लाह कल मैं तज़किरा करूँगा। कल भी यहाँ मुझे खाने की भी दावत है और बयान की भी दावत है, दोनों दावतें हैं, क्योंकि बयान की दावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक खाने की दावत ना हो। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेख अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे कि शेख बतन का दर्जा शेख बातिन से बढ़कर है। भाई बतन में जब तक पड़ेगा नहीं वहां तक शेख बातिन भी क्या काम करेगा। तो बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने काहे की फिक्र की, अपने औलाद की ईमान और दीन की वाक़ई इसलिए जिक्र किया। आज से कई साल पहले, 70-80 साल पहले, जैसे आज इर्तिदाद का दौर सुनने में आ रहा है, सैकड़ों लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है, ईमान और दीन को छोड़ रही है। इसी तरीके से एक दौर उस वक्त भी चला। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुफक्किर इस्लाम कहा जाता है, उनसे किसी ने अर्ज किया कि हजरत इस अफरा तफरी और इर्तिदाद के दौर में कोई अगर आपसे कहे कि इस चौराहे पर एक ब्लैक बोर्ड रख दिया जाए और उस पर कोई नसीहत लिखी जाए कि हर आने जाने वाला मुसलमान उसको पढ़े और नसीहत हासिल करे, तो आप क्या नसीहत लिखेंगे? तो हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं लंबी चौड़ी नसीहत नहीं लिखूंगा, यही आयत इस काल अली बनी हिमा ताबूदुन मिन बादी लिखकर उसका तर्जमा लिख दूंगा कि हर मुसलमान आते जाते पढ़े कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद की ईमान की फिक्र की थी, तुम भी उनकी ईमान की फिक्र करो। हजरत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बहुत साल पहले एक दोस्त ने सुनाया था कि हजरत बेंगलोर तशरीफ ले गए और बाई रोड जा रहे थे, तो रास्ते से छोटे छोटे स्कूल के बच्चे कतार दर कतार जा रहे थे बड़े मुहज्जब अंदाज में। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे ने रास्ते में एक पत्थर देखा और उस पत्थर को एक जानिब उठा करके रख दिया। हजरत को उस पर बड़ा प्यार आया कि कितना अदब वाला बच्चा है, इसके माँ बाप भी कैसे होंगे, उस्ताद भी अच्छी तरबियत करते होंगे। क्योंकि गाड़ी स्लो चल रही थी तो वहां रोक दिया और उस बच्चे को पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोई नाम बतलाया जिससे मालूम हुआ कि मुसलमान बच्चा है, उसका बाप भी मुसलमान है। अच्छा बेटा ये बतलाओ, तुमने ये रास्ते से पत्थर उठाकर एक जानिब रख दिया, किसने सिखाया तुमको, किसने बतलाया? पहले तो बहुत खुश हुए हजरत, लेकिन उसने जो जवाब दिया तो फिर सर पकड़ कर बैठ गए। कहने लगा वो बच्चा कि हमारी स्कूल के अंदर हमारी टीचर हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह अलैहिस्सलाम तुम्हारे खुदा है और खुदा का ये हुक्म है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना चाहिए, उस खुदा का हुक्म मानने की वजह से मैंने ऐसा किया है। तो हजरत अपना सर पर हाथ रखकर अफसोस करने लगे कि हमारे बच्चे अभी से इन मिशनरी स्कूलों में जा करके बचपन से ईमान को खो रहे हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता है। आज तो निसाब ही ऐसा बना दिया जा चुका है, उसकी फिक्रें की जा रही है, उसकी तैयारियां की जा रही है कि हमारी औलाद ईमान से दूर हो जाए, दीन से दूर हो जाए, उनका इस्लाम जो है खत्म हो जाए, इस्लाम से बेजार हो जाए। इसलिए ऐसे जमाने में ये फिक्रें पहले के मुकाबले में 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा हमारी होनी चाहिए कि हमें अपने और अपने औलाद की और अपनी नस्लों की और अपने खानदान की ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। बहरहाल हमारे असलाफ ने इसका बड़ा एहतमाम किया। उसके अलावा इन औलाद के ईमान के साथ उनकी अखलाकी तालीम तरबियत, जैसे अभी बच्चों ने कुछ प्रोग्राम पेश किया, रात में जल्दी सो जाना, ये सारी चीजें ये असलाफ के वाकयात में बड़ी बड़ी रुकुमात खर्च करती थी माएँ भी और बाप भी अपने औलाद की दीनी तरबियत और तालीम पर। आज तो हमारे मदरसे में 100 रुपया महीने की फीस वसूल की जाती है, वो भी हम देते हैं। और कहीं खर्च करने का मौका आ जाए कि फला मस्जिद के अंदर हौज बनाना है, टंकी बनानी है, हजरत आपका नाम आ जाएगा, वहाँ 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और अपने बच्चे की फीस के लिए 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ नाम होता है ना। एक साहब ने उससे पूछा कि मैं मस्जिद का ट्रस्टी हूँ, मस्जिद में फुला काम है, तो ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं या नहीं? कभी ज़कात की रकम मस्जिद में खर्च नहीं हो सकती है। थोड़े दिन के बाद पता चला, एक मदरसे वालों ने मुझे रिपोर्ट दी उनके नाम के साथ कि हमारे मदरसे में वर्जिश की मशीनें 10 लाख की उन्होंने दी लिल्लाह रकम से। वहाँ वर्जिश के लिए 10 लाख रुपये की मशीनें दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ नाम हो रहा है ना कि फुला की तरफ से रसीद बनी है, नाम हुआ है। अपनी मस्जिद में कौन नाम लेने वाला?
वहां ज़कात का मसला पूछते हैं। मिजाज ये हो चुका है हमारा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है रबियतुर राय। रबियतुर राय इमाम मालिक के उस्ताद है। ये जब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके वालिद ने सफर का इरादा किया और बहुत तवील, तकरीबन 30 साल का सफर हो गया। 30,000 दीनार अपनी बीवी को दे गए कि लो, ये अपने बच्चे की विलादत पर जो भी हो बच्चा, तुम्हारे बच्चों का खर्च मैं दे करके जा रहा हूँ। 30 साल के बाद जब सफर से वापस आए उनके वालिद, तो घर में दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, मुलाकात हुई, खैर खैरियत पूछी। तो पूछा कि 30,000 दिरहम तुझे देकर गया था, क्या किया उसका? तो कहा कि उसका जवाब मिल जाएगा, आप मस्जिद नबवी के अंदर जाए, नमाज वमाज पढ़ करके आए, फिर आपको जवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी के अंदर गए, फजर की नमाज के बाद हदीस की दर्स का हल्का लगा, मसनद लगाई गई। एक नौजवान खूबसूरत आलिम मसनद दर्स पर बैठे और बहुत बड़ा हल्का तलबा का हदीसें सुनने के लिए तैयार है और खुशबू धूनी जलाई गई। पूछने लगे मजलिस में बैठकर कि कौन है ये, कौन आ रहा है, ये कौन साहब है? लोगों ने कहा आप जानते नहीं, ये रबियतुर राय बहुत बड़े मुहद्दिस है और शेख है, आप उनसे नावाकिफ है। रबियतुर राय तो बहुत बड़े मुहद्दिस है, मस्जिद नबवी में रौज़े मुक़द्दसा के करीब हदीस का दर्स देते हैं। फिर उन्होंने बड़े वक़ार और संजीदगी से क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर हदीसें बयान करनी शुरू की। लोग लिख रहे हैं, कोई याद कर रहे हैं। मजलिस ख़त्म हुई, अपने घर पर आ गए। बीवी ने पूछा कुछ मंजर देखा मस्जिद में? अजीब मंजर देखा, एक नौजवान मुहद्दिस आलिम दीन हुजूर की हदीसें बयान कर रहा है। कहा वही आपके 30,000 अशरफियों का जवाब है। आप चले गए, बच्चे की विलादत हुई, मैंने अपने उस बच्चे पर कुरान और हदीस की तालीम पर 30,000 अशरफिया उस जमाने में खर्च की। कितना उन माओ बहनों को ज़ौक़ और शौक़ था अपने बच्चों की दीन, तालीम और तरबियत का। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबीई गुजरे, अजीब हाल है उनका। 40 साल तक सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी में इस तरह नमाज पढ़ी कि 40 साल तक अजान मस्जिद नबवी में ही सुनी उन्होंने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पर अजान सुनी और फिर आए। 40 साल तक, यहाँ तक कि वो हज्जाज इब्न यूसुफ का जब अमारत का दौर था, बैत के लिए जुल्म सितम हो रहा था, तो 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अजान हुई न नमाज हुई। लोग जुल्म के खौफ से घरों में छुप चुके थे। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को एहसास हुआ कि बरस से मस्जिद नबवी की नमाज कज़ा तो क्या, तकबीर उला तो क्या, अजान भी मेरी कभी वहां की फौत नहीं हुई। ए अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। इसलिए चोरी छुपके मस्जिद नबवी में कोने में जाकर पहुंच गए। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला के उनका क्या मकाम था। न कोई मुअज्जिन है, न कोई इमाम है, अकेले हैं। नमाज का वक्त होता है तो रोज़े मुक़द्दसा से अजान की आवाज़ आती है और आप नमाज पढ़ते हैं। जोहर में आवाज़ आती है, जोहर पढ़ते हैं। मगरिब में आवाज़ आती है, मगरिब पढ़ते हैं। इतना ऊंचा मकाम सईद इब्न मुसय्यब का कि रोज़े मुक़द्दसा से अजान के औकात में अजान की आवाज़ आती है और उसी पर नमाज पढ़ते थे। उनकी एक बच्ची थी, शागिर्दों का एक बड़ा हल्का था। एक दफ़ा एक बड़े ज़हीन और होशियार शागिर्द मजलिस दर्स से गैर हाजिर, पूछा कहाँ गया ये तालिब इल्म? हज़रत ये तो उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए उसकी वजह से आ नहीं सका। दूसरे दिन या 1-2 दिन के बाद वो आया तो हज़रत ने उसको की ताज़ियत की, तसल्ली दी उसको और बड़ा इत्मीनान दिलाया। फिर उसके बाद कहा कि बेटा तुम निकाह करोगे दूसरा? हज़रत मुझे कौन देगा, वैसे भी मैं तालिब इल्म हूँ। कहा मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कराता हूँ। सईद इब्न मुसय्यब ने अपनी बेटी का निकाह करा दिया। फिर खुद ही अपनी बेटी को अपने दामाद के यहाँ छोड़ने गए। उसके बाद सुबह में वो शागिर्द जल्दी मजलिस दर्स में हाजिर होने के लिए तैयारी कर रहे थे। बीवी ने पूछा कहाँ जाते हो? कहा भी दर्स छूट जाएगा, वैसे भी 1-2 दिन मेरा दर्स छूट गया, आपके वालिद का दर्स जारी होने जा रहा है, मैं जल्दी से जाता हूँ। कहा क्या जरूरत है जाने की, यहीं बैठो।
जितनी हदीसें मेरे वालिद तुमको सुनाएंगे या सुना चुकी, उतनी सारी हदीसें मुझे याद है, मैं सुनाती हूँ तुमको। बच्ची की तालीम और तरबियत कैसे, माँ बहनें इस पर गौर करें कि क्या हमारी बच्चियों के लिए हम उनके जेवर की, उनके कपड़ों की, उनके फर्नीचर की, उनकी ज़ेबाइश की तो फिक्र शादी से 10-10 साल पहले करते हैं। अभी तो बच्ची पैदा हुई तब से ही माँ रखती है कि ये जेवर उसको काम आएगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मेरी बेटी हाफिजा बन जाए, मेरी बेटी आलिमा बन जाए, मेरी बेटी दीन की दाइया बन जाए। इसकी फिक्र हमें बहुत कम होती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज की इस मजलिस में हम इस फिक्र को लेकर के उठे कि हम अपने लिए भी और अपने औलाद के लिए भी, अपने माताओं के लिए भी इस बात की फिक्र करेंगे कि वो ईमान पर कायम रहे, कुरान की तालीम हासिल करे, नमाजें उनको याद हो, दुआएं उनको याद हो, सुन्नतें उनको याद हो, ये सारी चीज़ें उनको याद होनी चाहिए, तब जाकर के औलाद हमारे लिए सदक़ा जारिया बनेगी। मज़मून तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसरन मैंने अर्ज़ किया 5 चीज़ें हैं जो हमारे असलाफ फिक्र करते थे। एक ईमान की, दूसरे नंबर पर दीन के अहकाम की, तीसरे नंबर पर सुनन नबविया की, तीसरे नंबर पर उनके अखलाक की, और 5वें नंबर पर दुआएं याद कराने की फिक्र करते थे। तवील मजमून है। फकत एक वाक़या अर्ज कर देता हूँ। तरबियत के सिलसिले में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बेटे ही की तरह थे। आपने उनको क्या फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, एक अमल बतलाता हूँ, इसको रोज़ाना कर लो। अगर ये अमल कर लोगे, ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखता है मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये नसीहत आप अपने मातहत छोटे बच्चे को कर रहे हैं। हज़रत अनस 9 साल के थे, 10 साल के थे, जब से लेकर 18 साल तक उम्र की खिदमत, आपकी खिदमत किया। अब छोटे से बच्चे को आप जो नसीहत कर रहे हैं वो क्या? मेरे प्यारे बेटे, अपने दिल को कीने से पाक रखना, हर एक से अपने दिल को पाक और साफ रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की तरबियत कर रहे हैं ताकि बच्चे का दिल अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, पड़ोसियों से पाक और साफ रहे। क्या हम अपने घरों में अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं? बल्कि अगर माँ की, उसकी ननद से कोई ज़रा सी नाचाकी हो गई तो बचपन से बच्चे का जहन बतला है, बेटा तेरी फूफी है ना, बहुत खतरनाक है, जाइए मत उसके पास ज़रा। चचा से, चाची से कोई ज़रा नाचाकी हो गई, पहले ही दिन से नफरत, तेरा चाचा, तेरी चाची बहुत बदमाश है, मुझ पर जादू किया, मुझ पर टोना किया, मुझ पर टुटका किया, ये सब बातें। वो बच्चा बचपन से कीना लेकर घूमता है, न चचा की अजमत, न मामू की अजमत, न फूफा की अजमत, न फूफी। क्या तालीम और तरबियत दे रहे हैं? ये ऐसी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को सिखाई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, छोटे से बच्चे, हुजूर की वफात के वक्त 12 साल के, और क्या तालीम देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को कि इब्न अब्बास, देख लो इब्न अब्बास, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुक़द्दर में जो भलाई और खैर लिखी है वो तुम्हें मिल कर के रहेगी, चाहे पूरी दुनिया मिलकर के उसको रोकना चाहे रोक नहीं सकते। और अगर तुम्हारे मुक़द्दर में अल्लाह ने कोई बुराई लिखी है वो पहुंच कर रहेगी, चाहे पूरी दुनिया मिलकर उसको रोकना चाहे रोक नहीं सकती। तवक्कुल बच्चों के दिल में हुजूर बिठा रहे हैं कि बच्चों का एतमाद अल्लाह पर हो, असबाब पर हो। अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, ये दौलत बचपन से अगर दिलों में डाली जाएगी तो बड़े होने पर भी बच्चों की नज़र दुनिया पर नहीं होगी, अल्लाह पर होगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अर्ज करने का मंशा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की जो नेमत हमें अता फरमाई, उस नेमत की कदर और उसका शुक्रिया यही है कि हम उसके ईमान की, दीन की, अखलाक की, इसकी फिक्र करें। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्गों पर रहम करे, उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए कि जो जिम्मेदारियां हम माँ बाप और सरपरस्तों पर होती थी, उन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए अल्लाह ने इन मदारिस और मकातिब का क़याम उसको वजूद बख्शा। और ये उलमा, ये हुफ़ाज़ और ये मुरब्बियान इन बच्चों की तरबियत तालीम करते हैं। कल हश्र के मैदान में अगर कोई किसी माँ बाप से अल्लाह ताला सवाल कर ले कि तूने अपने बच्चों को ईमान सिखाया था, कुरान सिखाया था, नमाज सिखाई थी, दीन सिखाई थी, हो सकता है कि वो गाफिल रहा हो, लेकिन वो ये तो कह सकता है कि अल्लाह, मैं तो इस जिम्मेदारी को बजा नहीं ला सका, लेकिन मेरे मोहल्ले में जो मदरसा और मकतब चलता था, वहाँ के उलमा, वहाँ के हुफ़ाज़, वहाँ के मुदर्रिसीन ने मेरी जिम्मेदारी ले ली थी। अल्लाह इसकी वजह से मुझे तू नजात दे दे। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है
कि इंशाअल्लाह ताला इसी वजह से हमारी नजात हो जाएगी। इन मदारिस मकातिब को आप कम न समझे। मैं एक वाक़या अक्सर अर्ज करता रहता हूँ। हमारे बुजुर्ग तरीन शख्सियत दाई कबीर हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवलवी दामद बरकात, अभी कई जलसों में हजरत भी तशरीफ फरमा रहे हैं। मैंने कहा मुझे पहले बतलाते तो मैं आता ही काहे को, इन बुजुर्गों की मौजूदगी में कुछ कहना कोई आसान थोड़ा ही है। लेकिन वो बड़े लोग हैं, जिस बयान में शरीक हुए हजरत मेरे पहलू में बैठे और कहा, मैं कहा हजरत आप आराम फरमाइए, फिर मैं बयान करूंगा, उसके बाद आना। कहा भाई इल्म का छुपाना जायज़ नहीं है। मुझे फरमाया कि इल्म का छुपाना जायज़ नहीं। बहरहाल उनकी ज़रा नवाज़ी, उनका वाक़या खुद उनकी ज़बानी मैंने सुना है कि एक दफ़ा उनकी जमात अरब मुल्कों में गई थी। एक मस्जिद में वो बैठे हुए थे और अरबी ज़बान में ख़त लिख रहे थे। दावत और तबलीग की अहमियत, उसकी फजीलत, उसके फ़वाइद और उम्मत में दावत न होने के नुकसान, ये सारी चीज़ें उस ख़त का मजमून था और अरबी ज़बान में, बेहतरीन अरबी। तो एक अरब नौजवान हजरत के पास आया, सलाम किया, खैरियत मालूम की, पूछा क्या है आप, कहाँ से आए, क्या है। तो हजरत ने वो ख़त उसके सामने पेश कर दिया। उसने बड़े ज़ौक़ शौक़ से वो ख़त पढ़ा, बड़ा असर हुआ। तो पूछने लगा अंत मिनल अरब, क्या आप अरब के कोई आलिम आदमी हो? कहा मिनल हिंद, नहीं भाई मैं तो इंडिया हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। कहा हो सकता है आपके वालिदैन अरबी हो, मैंने मेरे वालिदैन भी वहीं के रहने वाले हैं। तो कहा आप भी अजमी यानी गैर अरबी है, आपके माँ बाप भी गैर अरबी, तो कुरान और हदीस की रोशनी में दावत और तबलीग की अहमियत और फजीलत पर इतनी अहम रोशनी, इतने अहम निकात, इतने अहम पॉइंट कैसे आप लिख सकते हैं जबकि आप अरबी नहीं है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। हमारे अकाबिरीन ने पूरे मुल्क में जगह जगह मदारिस और मकातिब का जाल बिछाया है। एक मदरसे में मैं भी दाखिल हुआ। मैंने इब्तदाई नहव सर्फ जो ग्रामर की किताबें होती है वो पढ़ी, उसके बाद फ़िक़्ह, कुरान और हदीस की किताबें पढ़ी। अरबी बोलने पर भी मैं कादिर हुआ, इस दीन की दावत में जुड़ गया। उसी मदरसे और मकतब की बरकत है कि मैं आज आलिम कहलाता हूँ और दावत के इस काम में लगा हूँ और कुरान और हदीस की ठोस बातें मैं उम्मत के सामने पेश कर सकता हूँ। उसने पूछा ये तुम्हारे यहाँ मदरसे मकतब कौन चलाते हैं? हुकूमत की तरफ से चलते हैं, हुकूमत ताउन करती है? हज़रत ने कहा नहीं, ये जो मकातिब और मदरसे हैं आम मुसलमानों के चंदे से चलते हैं, गवर्नमेंट का, हुकूमत का कोई ताउन नहीं। का वो नौजवान बिल्कुल फड़क उठा, जज्बात में आ गया और उसने कहा मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि जब तक आपके मुल्क में मदारिस और मकातिब आम मुसलमानों के चंदे से चलते रहेंगे, हिंदुस्तान से दीन और इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। इन मदरसों को मामूली न समझे। हजरत मौलाना ने खुद मुझसे फरमाया पहले भी कि इस्लामी मुल्कों में जाना होता है, लेकिन जिस नज्म और ज़ब्त और जिस आज़ादी से ये तालीम हमारे यहाँ होती है, उन इस्लामी मुल्कों में इस आज़ादी से तालीम आप नहीं पा सकते। ये इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं, सऊदी में जाकर के करके नहीं कि कौन करने देगा आपको। ये बच्चे तिलावत कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, मुकालमा पेश कर रहे हैं, ये पाबंदियाँ। बाज़ मुल्कों में तो खास आयात हिजाब, आयात जिहाद पर पाबंदी है। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में तालीम होती है ज़रूर, लेकिन एक पीरियड की तरह 1 घंटा, बस 1 घंटा। उस घंटे में सभी शामिल होते हैं, यहूदी बच्चे भी, नसरानी भी और मुसलमान भी, सबको हासिल करना होता है। तो कुछ सूरतें हैं, कुछ दुआएं हैं। हज़रत फरमा रहे थे कि एक ड्राइवर हमारे साथ था, तो हम मुज़ाकरा कर रहे थे कि सुनाओ सूरह अलम तरा कैफ क़ाल रब्बुका भी अस्हाबिल फील, सब ने पढ़ा, उस ड्राइवर ने भी पढ़ा। तो हमारे साथी ने कहा ड्राइवर जानते हज़रत ये ईसाई, स्कूल में याद किया उसने। इस तरह बस एक कोर्स पूरा करना है और कुछ नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। ज़रूरत है कि इन मदारिस की हम कदर करें, इन मकातिब की कदर करें। अगर हमने इन मदारिस और मकातिब की कदर नहीं की, इन उलमा को अगर जलील किया, अल्लाह न करे ये नेमत अगर उड़ जाएगी तो मस्जिदों से आवाज़ बंद हो जाएगी, अजान की आवाज़। कुरान देखने को हम तरफ जाएंगे, कुरान पाक के हल्के हमें नजर नहीं आएंगे। रूस के अंदर क्या हुआ, रशिया के अंदर जब नाकदरी हुई तो यह हल हुआ कि कुरान देखने को तरफ गए। हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब दामद बरकात वाक़या सुनाते हैं, समरकंद और बुखारा कि जब ये मसाजिद बंद हो गई, तालीम गाहें बंद हो गई, मसाजिद बंद हो गई, अजानें बंद हो गई, शराब के अड्डे बना दिए गए, फिर अल्लाह ने हालात में इनकलाब पैदा किया। कुछ अरब नौजवान एक बस्ती से गुजरे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें पूछा कि मुसलमान हो? कहा हाँ मुसलमान है। कहा बेटा देखो मेरी एक तमन्ना है,
جب دوبارہ یہاں سے گزرو تو ذرا قرآن پاک لے آنا. تو دوسری مرتبہ وہ نوجوان وہاں سے گزرے, یاد آیا تو قرآن پاک اس بڑھی کے گھر پر دینے کے لیے گئے. جیسے اس بڑھیا نے قرآن دیکھا تو اپنے سینے سے لگا دیا اور زار و قطار رونے لگی, ہچکیاں بن گئی اس کی. اس کے بعد اس نے اپنے گھر میں سے ایک صندوق نکالا اور اس میں سونے چاندی کے زیورات تھے, اور ان کو ہدیہ اور نظر پیش کیا اور کہا کہ بیٹا میں نے منت مانی تھی, 70 سال سے میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی, میں نے نظر مانی تھی کہ جو قرآن کی زیارت کرا دے گا یہ پیٹی اس کو ہدیے میں دوں. ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات, ہم اپنی نظروں سے دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے. اللہ نہ کرے وہ حالات آئے, اس لیے ہم ناقدری سے بچے, قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کو, ان مکاتب کو, مساجد کو, خانقاہوں کو, مراکز دعوت و تبلیغ کو اللہ آباد اور شاد رکھے. تو انشاءاللہ اس ملک سے کبھی دین ختم نہیں ہو سکتا ہے. اسی پر چند باتیں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. بہت وقت بھی ہو چکا ہے, آئندہ کل پھر حاضری ہوگی تو انشاءاللہ قرآن کی برکات اور اس کے متعلق بھی اللہ جو کہلوائے گا کچھ باتیں عرض کر دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, اپنی طاعات کی اللہ توفیق عطا فرما, معاصی اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. جن بچوں نے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل کی, جیسے ان کے سینوں کو اللہ الفاظ قرآنی سے تو نے بھر دیا ہے, اللہ علوم قرآنی اور معارف قرآنی سے بھی ان کے سینوں کو منور فرما. قرآنی اعمال صالحہ اور قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کی زندگیوں کو مزین فرما. الہ العالمین رات اور دن کی گھڑیوں میں تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے اور بشارتیں تو نے حضور کے زبان اللہ عطا فرمائے ہیں, اے اللہ ان بچوں کے حق میں, ان کے ماں باپ, اہل خاندان, ان کے مربیان, اساتذہ کے حق میں دنیا آخرت میں پوری فرما. الہ العالمین ہمارے ان مدارس, مکاتب, خانقاہ, مراکز دعوت و تبلیغ, دینی ملی جمعیت جماعتوں کی اللہ حفاظت فرما. دشمنان اسلام کی سازشوں سے ان کی حفاظت فرما. آپ خارجی اور داخلی فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. جو حضرات دامے درمے سخن قدمے ان مدارس مکاتب کا تعاون کرتے ہیں یا محبت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں, دونوں آخرت میں ان کو سرسبز شاداب فرما, بہترین بدلہ انہیں عطا فرما. جن بزرگوں نے یہ سلسلے قائم کیے ان کے قبروں کو اللہ نور سے منور فرما. اللہ اس مجمع میں حاضر تیرے بندے اور بندیوں کے نیک جائز حاجتیں پوری فرما. جس کی جو تکلیف اور مصیبت ہے اس کو دور فرما. قید و بند میں محبوسین کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جن گھروں میں اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ گئی ان کے لیے نیک صالح جوڑے عطا فرما. جن کی اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو تو اپنا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے ہمارے متعلقین میں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جس کی جو حاجت ہے اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما. اس جلسے کو اللہ قبول فرما اور اس کے ذریعے خیر اور برکتیں یا اللہ پورے علاقے اور پورے اطراف میں اس کے شائع اور ظاہر ہونے کے فیصلے فرما. آئندہ بھی جو اجلاسات ہیں ان کو بھی اللہ قبول فرما. ان کی برکتوں سے مجمع کو مالا مال فرما. جو کچھ مانگا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر اور بھلائیت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی ان سے حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسافر سے معذرت کیونکہ کئی دن سے سفر میں ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوں, اس لیے انشاءاللہ ملتے ہی رہتے ہیں مسافر کو.